Welcome to Bioratna. Those of you who are watching me for the first time, let me introduce myself. I am Chandana Sengupta. I have 18 plus years of teaching experience. I am honored to be recognized as Excellent Educationist by HRD Ministry, Government of India. My few suggestions have been incorporated in Standard 11th and 12th NCERT Biology. Many of my students have taken admission in government medical colleges, and every session for 12th board I have given my bio toppers with 98 or 99 marks. But my real introduction, students, is that I love my subject and I love and care for my students. Today we are going to discuss the subtopic competition from the topic population interaction, and you know the chapter, that is organisms and population. What is competition? Let us first see what is competition. Competition is population interaction in which both the species are negatively affected. I repeat again. Competition is a population interaction in which both the competing species, if this is species A, this is species B, both negatively affect each other. Okay, but what is competition? Negatively affect each other तो समझ में आया, but actually what is competition? We will arrive to the proper definition afterwards. Before that, we need to clear some concept. कुछ points discuss करने ज़रूरी है. First, we start with Darwin. Darwin, what he stated, Darwin was convinced that it is the interspecific competition which is the potent force for evolution. अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि ये क्या हुआ? पढ़ रहे थे कंपटीशन, पहुंच गए इवोल्यूशन में, ये क्या बात हुई? यही तो बात हुई. समझिए इसको. डार्विन, before that you have to understand what is interspecific and what is intraspecific. Intraspecific मतलब individuals of the same species. जैसे ह्यूमन बीइंग है, उन्हीं के जितने इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं किसी रिसोर्स के लिए, देन इट इज़ द इंट्रास्पेसिफिक. और अगर अलग अलग स्पेसीज आपस में लड़ रहे हैं देन इट इज़ इंटरस्पेसिफिक. याद कैसे रखोगे इंट्रास्पेसिफिक इंटरस्पेसिफिक? एमसीक्यूज में पूछेगा डार्विन ने क्या कहा था, इंटरस्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक, इंटरजेनेरिक, इंट्राजेनेरिक. यू शुडंट कंफ्यूज एट दैट टाइम. यू आर स्कूल स्टूडेंट्स. शुरू से आपने इंटर हाउस कंपटीशन किए होंगे. 4 हाउस के बीच में जब कंपटीशन होता था दैट वाज कॉल्ड इंटर हाउस कंपटीशन. लेकिन हर इंडिविजुअल हाउस के जब स्टूडेंट्स को चुना जाता था फॉर दैट इंटर हाउस कंपटीशन, then the competition was between the students of the same house. सेम हाउस का था तो इंट्रा हाउस कंपटीशन. जो इंटर हाउस कंपटीशन जब दो अलग अलग हाउस की बात आ रही थी, तो यहाँ हम इंटर हाउस कंपटीशन तो नहीं लिखेंगे. दिस इज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन which is the potent force for evolution. ये लाइन थोड़ी बाद में समझते हैं, पहले इस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को और अच्छे से समझ ले. सी, दिस इज वन एरिया. इस एरिया में बहुत सारे हॉर्सेस हैं. सो दिस इज हॉर्स. बहुत सारे डोंकीज हैं. सो दिस इज डोंकी. और ये सर्कुलर वन इज द डोंकी and this rectangular one which I am drawing, this is giraffe. So this is giraffe. So there are horses, donkey and giraffe. All are herbivores. तो इस एरिया में जितना घास होगा everyone will be competing. The horse, donkey, giraffe, everyone will be competing for the grass. Resource same है, उसके लिए उनमें competition रहेगी. This is interspecific competition. जितने हॉर्स के इंडिविजुअल हैं, अगर हॉर्सेस आपस में लड़ते हैं दैट इज इंट्रास्पेसिफिक. डोंकीज आपस में कंपटीशन करते हैं दैट इज इंट्रास्पेसिफिक.
but Darwin was convinced, according to his observation, that it is the interspecific competition, inter-house competition, which is the, यहाँ तक समझ गए? अब हम देखते हैं why the reference of evolution is here. Here you are studying ecology. Nature, students, is not at all bothered about what happens to an individual. आपके लिए क्या होता है इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है. आपके लाइफ में क्या है वो पूरी तरह से आपके अपने आपको खुद सोचना है. नो वन इज बॉदर्ड कि आपके साथ क्या हो रहा है अगर बुरा हो गया तो. सो टेक केयर. तो यहाँ क्या हो रहा है? तो when there is a competition between species A and species B, अब नेचर ये ऑब्जर्व कर रहा है कि अच्छा देख रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, दोनों लड़ो, चलो लड़ो, कौन जीता कौन जीता कौन जीता. जो जीता उस इंडिविजुअल से तो उसे कोई मतलब नहीं है, उसके ऑफस्प्रिंग से मतलब है. मतलब कौन से जीन पास होते गए. अभी जो हम लोग चारों ओर जितने स्पेसिस देख रहे हैं, वॉट एवर वी आर ऑब्जर्विंग, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन में जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए आज के मोमेंट में उसका प्रोडक्ट हम देख रहे हैं. एंड आवर दिस पोजिशन इज ऑल्सो नॉट स्टैटिक, हम लोग कंटिन्यूस इवॉल्व कर रहे हैं. सो हियर बाय द कॉम्पिटिशन द वन हु इज विनर, वो फिर अपने जीन अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करेगा. फिर उसके बच्चे में दूसरे उन लोगों वो लोग स्ट्रगल करेंगे. फिर जो सुपीरियर होगा वो अपना जीन ट्रांसफ़र करेगा. इस तरह से होते हुए फिर वो जीन एक्यूमुलेट होते हुए और दूसरे फैक्टर्स उसके ऊपर काम करते हुए किस तरह से नया स्पेसीज इवॉल्व होता है. दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन एक्चुअली. सो हियर डार्विन इज सेइंग इट इज़ द इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अब किसी भी MCQ में आपको भूलना नहीं है. तो डार्विन के 2 पॉइंट्स हो गए आपके, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन एंड दिस इज द पोटेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन. कंपटीशन का अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. इस नेक्स्ट पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना है. जो मैं बता रही हूँ उसे NCERT से 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ के टैली कर लेना है कि मैम जो बता रही है सही बता रही है, क्योंकि ये नहीं समझ में आने से इसका बहुत गलत तरह का इसमें से मीनिंग निकाला जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो. फाइन. अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज द 2 बिलीफ्स अबाउट कंपटीशन. 2 बिलीफ्स अबाउट कंपटीशन, नॉट 2 अनट्रूथ्स. ये कुछ झूठ नहीं है. 2 बिलीफ्स कि कंपटीशन तभी होता है जब ये 2 चीज़ें होती है. कौन सी 2 चीज़ें होती है? कि दिस हैज़ टू बी बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पेसेस. क्लोजली रिलेटेड स्पेसेस सही तो है. अगर क्लोजली रिलेटेड स्पेसेस होंगे, हॉर्स इज देयर, डोंकी इज देयर, जिराफ इज देयर, सो कॉमन रिसोर्स फॉर कॉमन रिसोर्स दे आर फाइटिंग. सो नेचुरली स्पेस के लिए, फूड के लिए वो लोग लड़ेंगे. एक अगर ज़मीन पे रह रहा है, एक दूसरा पानी में रह रहा है, रहने की जगह अलग, हैबिटेट इज़ डिफरेंट, फूड इज़ डिफरेंट, व्हाई विल दे कॉम्पीट? सो this is the first belief that it is between closely related spaces, and the second one is that competition occurs only when the resources are limited. The resources are limited. सही तो है. अगर बहुत सारी घास है, बहुत सारी घास है तो ये जिराफ, डोंकी, हॉर्स आपस में लड़ेंगे क्यों? हर कोई अपने अपने हिस्से का खा के आराम से सो जाएंगे. So this is not something true, untrue, myth, truth. No. ये सही है बट हमेशा 100% ऐसा होता है ऐसा भी नहीं है. NCERT आपको ये कह रहा है ये 2 चीज़ें हैं अबाउट कंपटीशन. These are the 2 beliefs and there are some other incidents also where these 2 are not always true. Not always true. Not that it is untrue. Not always true. तो कैसे? पहला हम देखते हैं कि बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस नहीं, एकदम दूर दूर से रिलेटेड स्पेसिस. वन इज बर्ड, वन इज फिश. एक हवा वाला, एक पानी वाला. सो हाउ द कंपटीशन occurs between a fish and a bird. Let us see that. See, MCQs में जो आते हैं बच्चों,
I will be guiding you about the different types of MCQs which are asked, how it is to be prepared. In the description box, I will provide you the link for my class notes. The class notes which are so dear to the students. It has helped my students to get 99, 98 marks every session. This is happening. But there is no substitute for NCERT. Read it word by word. The notes will be definitely helpful, but it is not substitute for NCERT. Okay, so we will see an example of competition between two species which are not closely related at all. The visiting bird, that is flamingo, and another one is the resident fish. कहाँ का रेसिडेंट, कौन सी जगह है, ये भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस है. किसके बीच में कंपटीशन हुआ, इमीडिएटली इट इज फ्लेमिंगो, इट इज फिश. ठीक है ठीक है ठीक है. जगह कौन सी है, पहले फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द रिसोर्स फॉर विच दे आर कॉम्पिटिंग, दैट इज जू प्लैंकटन. दोनों को जू प्लैंकटन ही खाना है. एंड वेयर, कहाँ की स्टडी है ये, दिस इज शैलो साउथ अमेरिकन लेक. शैलो साउथ अमेरिकन लेक. ठीक है, नहीं याद रहेगा कि ब्लड फ्लेमिंगो है, ये फिश है, द रिसोर्स इज जू प्लैंकटन एंड द प्लेस इज शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स. मतलब कितने सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस है यहाँ पे. कैसे याद रहेगा, अगर आप इस फ्लेमिंगो को थोड़ा सा देख लो कि भैया आप कैसे दिखते हो, थोड़ा सा गूगल कर लो. आप बस पढ़ाई के लिए पढ़ाई मत करो कि मुझे फ्लेमिंगो बोल रटना है, रटते ही रह जाओगे, कभी नहीं याद होगा. आपने गूगल किया, आपने देखा कितना सुंदर पिंक सा, कलर्स में वैरी, नॉर्मली इट इज़ पिंक, पिंक सा है, लंबे लंबे ग्रेसफुल पैर है और छोटी सी बॉडी है, ऐसी तिरछी सी बीक है और गला जो है उसका, एंड द नेक इज़ वेरी लॉन्ग, ब्यूटीफुल लॉन्ग नेक. अब फ्लेमिंगो याद रह गया. अब आप बोलोगे फ्लेमिंगो बर्ड है, उस पानी शैलो रहेगा तभी तो नहीं डूबेगा मेरा ये फ्लेमिंगो, तो पानी को शैलो होना चाहिए. शैलो हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पकड़ में गया शैलो साउथ अमेरिकन लेक. वहाँ थे रेसिडेंट फिशेस. द कॉम्पिटिशन वॉज फॉर जू प्लैंकटन. व्हाट वॉज द अनदर बिलीफ, that competition occurs only when the resources are limiting. अब हम इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं. वो अनट्रू है ये दिमाग में मत लाना, वो आप खुद ऐसे सोचोगे तो भी आपको समझ में आएगा, ये अनट्रू हो ही नहीं सकता है. रिसोर्स लिमिटेड होंगे तभी वो तीनों हॉर्स जिराफ डोंकी आपस में लड़ेंगे, किसी को शौक नहीं है लड़ने का. तो इसका हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन. इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन क्या होता है इसमें, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इन विच द फीडिंग कैपेसिटी ऑफ वन स्पेसीज गेट reduced in presence of another species which decreases its reproductive potential called R. फिर फंस गए, ये फिर रिप्रोडक्शन कहाँ से आ गया. लेकिन अब आप नहीं फंसे. आप जानते हो कि एक इकोलॉजिस्ट और ये जो नेचर है ये इट इज़ इंटरेस्टेड इन व्हाट कंपटीशन इज गोइंग ऑन, कौन से जीन पास हो रहे हैं रिप्रोडक्शन में, ऑफस्प्रिंग में कौन से जीन पास हो रहे हैं. और यहीं पे आपको कंपटीशन का मेन डेफिनेशन भी बच्चों मिल जाता है. देखो, आई रिपीट अगेन, what is interference competition? It is a type of competition in which the feeding capacity of one species, suppose that species is A, becomes less, कम खाने लगता है in presence of another species, that is species B. एक दूसरा irritating species है जिसके presence में वो खाता नहीं है, उसका रिप्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है, विच अफेक्ट्स इट्स रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कॉल्ड आर. आर इज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. इसे एक एनालॉगस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो. जैसे आप स्टैंडर्ड 12 में हो,
आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप 12th के बच्चे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, और आपका एक छोटा भाई या बहन है, क्लास 4-5 में है, तो उसका रिसोर्स डिफरेंट है, उसको तो आपके नीट से मतलब नहीं, उसको आपके बोर्ड से मतलब नहीं, बट ही इज़ वेरी इरिटेटिंग, कंटिन्यूसली आपको इंटरफेयर करता है, दौड़ के आता है, ये चीज़ फेंक देता है, वो फेंक देता है, आपके सामान कहीं छिपा देता है, कभी रोते रहता है, कभी कुछ करते रहता है. सो इन हिज और हर प्रेजेंस यू कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली. यहाँ क्या है, it cannot feed properly, due to which its reproductive potential gets affected. Reproductive potential is R. So हमने दोनों बिलीव्स देख लिए, उन दोनों बिलीव से हटकर भी कुछ होता है ये भी देख लिया. Done. Now we will study Gauss exclusion principle. Gauss, scientist, his principle called exclusion principle. ये क्या कहता है कि इफ देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टू स्पेसिस, स्पेसिस ए एंड स्पेसिस बी, देन जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर होगा वो ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो रहेगा नहीं तक. व्हेन देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टू स्पेसिस, देन द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पेसिस एक्सक्लूड्स द इंफीरियर वन. ठीक है. अब इसका जब एग्जाम्पल पूछेंगे ना तो बच्चों से, तो 100% तुरंत बहुत एकदम हाँ 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 हमें आता है करके बोलेंगे, 100% गो रॉन्ग. क्या एग्जाम्पल देंगे कि इट इज़ द गैलापागोस आइलैंड. इन दिस आइलैंड देर इज़ अ स्पेसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, गोट. गोट पहले नहीं थे. वहाँ पे रेसिडेंट एबंडन टॉर्टोइजेस थे. नाउ आराम से ये टॉर्टोइजेस वहाँ रहते थे, धीरे धीरे घास चरते थे. बट व्हेन दिस गोट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, देन ड्यू टू देयर मोर ग्रेजिंग एफिशिएंसी, ज़्यादा जल्दी चर सकते थे, वो इन्हें नहीं खाने देते थे. सो ग्रेजुअली द टॉर्टोइजेस बिकेम एक्सटिंक्ट. ठीक है. बट दिस इज़ नॉट गॉस एक्सपेरिमेंट. गॉस ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था. एनसीईआरटी ने भी वहाँ क्लियरली लिखा है कि गॉस ने जो बताया उसके एविडेंसेस नेचर में है. एनसीईआरटी ने ये आपको नहीं बोला कि गॉस ने ये कहा था, गॉस ने नहीं कहा था. गॉस ने जो एक्सपेरिमेंट किया और उसने जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया, योर एनसीईआरटी इज टेलिंग यू कि उसके एविडेंसेस नेचर में है. जैसे ये गोट, एबेंडन टॉर्टाइज, गैलापागोस आइलैंड, बहुत सारे यहाँ पे आपको आइलैंड, सुपीरियर स्पेसीज, इंफीरियर स्पेसीज इन टर्म्स ऑफ ग्रेजिंग एफिशिएंसी, ये सारे आपको याद रखने हैं. बाकी 3 ऑप्शन जो आ जाए आप सीधे अपने सही ऑप्शन पे हाथ रखने वाले हो. सो दिस इज गॉस का. तब गॉस का एक्सपेरिमेंट क्या था? Gauss, he did his experiment on 2 species of Paramecium, Paramecium aurelia and Paramecium caudata. Paramecium aurelia and Paramecium caudata. इन दोनों को उसने बैक्टीरियल कल्चर में ग्रो किया जो इन दोनों का फूड था. He kept these two in the same flask. Every day he used to count the number of individuals present there. He found that gradually this P. caudata became extinct and it was only P. aurelia which survived. Based on this experiment on Paramecium, Gauss gave this exclusion principle. समझ में आ गया? ये वाला है नहीं एनसीईआरटी में, बट एनसीईआरटी लव्स कि बच्चों में एक इंक्विजिटिवनेस रहे, कि उन्हें अगर बताया गया कि गॉस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था तो उनके दिमाग में आना चाहिए क्या था वो एक्सपेरिमेंट, क्या उन्होंने गूगल किया, क्या उन्होंने अपने टीचर से पूछा, क्या खुद से देखा, बस इतना ही. ऑल द गाइडेड क्वेश्चंस ऑल्सो कम. एनसीईआरटी से आता है, अंडरस्टैंड कर लेते हो वहीं से आता है. कुछ गाइडेड क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पे आपको लाके छोड़ दिया, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा उसका क्या था. इतना चाहिए आपसे. एनसीईआरटी एक्सपेक्ट दिस मच फ्रॉम यू. नाउ ओनली 2 points are remaining. One is Cornell's competitive release and another is Arthur's resource partitioning.
we will not first take up Cornell's experiment as it is there in NCERT. पहले हम ले लेते हैं मैक आर्थर का एक्सपेरिमेंट. क्यों? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू दिस गॉस प्रिंसिपल. व्हाट गॉस इज सेइंग कि सुपीरियर स्पेसिस इंफीरियर स्पेसिस को एलिमिनेट कर देता है, इंफीरियर वन एक्सटिंक्ट हो जाता है. नाउ मैक आर्थर in his resource partitioning, he says that this Gauss principle, it holds true only when the resources are very limited. दोनों पैरामीशियम एक फ्लास्क में थे जहाँ न्यूट्रिएंट बहुत कम था तो नेचुरली पैरामीशियम ऑरेलिया वॉज सुपीरियर और कॉर्डेटा को उसने एक्सटेंड कर दिया. But when the resources are not limiting, MacArthur is saying at that time, Gauss exclusion principle does not hold true. Rather, the competing species, they go for resource partitioning. His experiment was on 5 species of warblers. Warbler चिड़िया है बच्चों. 5 species of warblers which were living on the same tree. Rather than competing with each other, rather than harming each other, what they did, they avoided competition by different foraging behavior, different foraging activity. कि चलो आप ऊपर वाला यहाँ पे, आप यहाँ से खा लो, आप इस ब्रांच से खा लो, मैं यहाँ पे रह लेता हूँ, like that. So this is MacArthur's resource partitioning. These 5 species, they could coexist due to their behavioral difference in foraging activity. आपके MCQ के लिए याद रखना behavioral. MacArthur का आया, बस बहुत सारे points याद है नहीं. Then if it is asked कि ये 5 species of warblers, they could survive because of which pattern? It is due to behavioral difference in their foraging activity. खाने के पैटर्न में डिफरेंस था. This was MacArthur. Now come to the last one. Last one is, this is Cornell's experiment, which is called competitive release. Competitive release मतलब कंपटीशन खत्म हो गया. कंपटीशन खत्म हो गया तो जो इंफीरियर था उसने अपना साम्राज्य फैला लिया. दैट सिंपल. अब उसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे किस जगह पे है और दोनों स्पेसीज कौन है. फिर से दिस Cornell एंड द एरिया इज दिस इज रॉकी इंटरटाइडल. रॉकी इंटरटाइडल सी कोस्ट और सी शोर ऑफ स्कॉटलैंड. And the 2 species, the superior one is Balanus. This is the superior one, and the inferior one is Cathamalus. This is the inferior one. ये कैसे याद रहेगा आपको? इसमें बहुत सारे टर्म्स है ना, ऐसे मिक्स होके रह जाते हैं. बिल्कुल नहीं मिक्स होते हैं. वो शैलो वाला तो आप याद रखोगे फ्लेमिंगो से. यहाँ जो है, if you understand this point properly, intertidal, then you are never confused. Intertidal zone is that zone where the sea meets the land. तो यहाँ पे sea है, यहाँ पे land है. ये जो intertidal zone वो zone है जो low tide में वहाँ के ऊपर से पानी हट जाता है और high tide में वो पानी से भर जाता है. I repeat, intertidal zone वो zone है जो लो टाइड में वहाँ से पानी हट जाती है एंड ड्यूरिंग हाई टाइड इट गेट्स कवर्ड विथ वाटर. देन दिस Balanus, it occupies a proper area from which it does not allow the Cathamalus to come there. And when Cornell experimentally removed Balanus, then the geographical area of Cathamalus was increased. In this whole experiment, geographical distribution range of Cathamalus increased. Geographical area, ये point main है. पहले वो दुबका सा रहता था जहाँ पे, दूसरी जगह पे जैसे इस सुपीरियर को हटा दिया गया तो उसने फिर वो सुपीरियर वाला एरिया भी कवर कर लिया. So this was Cornell's experiment. एंड थ्रू आउट वी हैव डिस्कस द MCQs और ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है आपको.
So that is all about competition. And if this video is helpful to you for your competitive exams, तो फिर आप वेट क्या कर रहे हो? Please do subscribe, hit the bell icon so that my all videos reach you in proper time.